Me, my husband, and my daughter, we were living in the Bangalore as a happy family. In 2019, my husband and I decided to move out from Bangalore to MP. After almost 2 months, this COVID hit. Home, I don't know from where he got this thing, and suddenly he suffered from severe infection. तो 2-3 दिन के बाद we thought okay we should go to hospital and we should check for the COVID first. जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो when we checked this that all the tests got done, but he there was no COVID detected. So the major problem from there got started. तो वहाँ से कोविड नहीं निकला. We went to home again and we were like very much happy कि चलो कोविड तो नहीं है. After 4-5 days, the breathlessness issue got started suddenly. He was not able to sleep at night. He went to the hospital all alone with him. वहाँ पर सब check किया तो doctor was literally shocked and he said his lungs got infected 70%. And he got admitted at the same time. But there was literally a worst situation at the hospital was going on. There was no bed. There was no doctors. Somehow over a night we got him admitted in the hospital, and after a week that oxygen mask, everything, doctor said कि now the situation is much better. He will recover slowly. We will discharge him. In a week, within 7 days, doctor discharged him. He came back to home. Everything was going smooth. We were happy like he's back. After a week, suddenly the situation got worst. At 4 o'clock in the morning, because he was quarantined at another room, he called me and he said ki yaar, I'm again feeling the same. Went to the hospital. Doctor asked him to admit in the ICU directly because the situation again same. He said infection almost again the same, 70-80% infected. Your lungs are not working. Okay, you are still infected this much. I'm not sure why doctor discharged him a week ago. After some time we came to know there was less beds and there were a lot of patients. So because the patients who was recovering little bit, they were just discharging them and they were asking their family members give them medicine and everything, and सब भगवान भरोसे टाइप चल रहा था. ऐसा सिचुएशन था. Suddenly in the evening 6 o'clock he messaged me, I'm not well and I'm not sure what is going on, but I'm in ICU and my situation is not good. That's it. He messaged me. He didn't say anything. I motivated him like you will be all right, everything, but the patient को थोड़ा शायद पता चलता है कि situation is not good. 10 o'clock, 10:45, he called me, video call, because my daughter was crying for him. I called him many times कि शायद एक बार उठा ले. He picked up the call. There was an oxygen mask. Like he shown his face, and he said, I'm not well. We will talk to him. Suddenly 11 o'clock, just after 15 minutes, I got a call from my brother-in-law, like the situation is not good. We have to visit the hospital immediately. I was like, पता नहीं क्या हो रहा है. सब एकदम पता नहीं क्या हुआ, और he got a major heart attack because of COVID, and the situation was very bad for us because when we went to the hospital, he was no more. I'm not sure what happened to him. He called doctor came or not came, or what happened. We still don't know. So the next, my story got started from there. I found a new house because that where we were living, I never
went to that house again. By passion, I'm a Zumba trainer. I'm a Zumba trainer since almost 10 years I'm teaching Zumba. Okay. I was teaching online in Bangalore. When I was in Bangalore, I was teaching offline sessions in many places, like in corporates, in gyms, everywhere. That was my full-time job. After a week, I got a call from his company, my husband's company, and they asked me for the interview, and they were ready to help me. They literally helped me a lot. I stood again, and I started my classes. I resumed my online classes again, and I faced the interview. I cracked that interview. I joined his company. But जब I faced the same issue, I literally don't know from where I got this courage. और मुझे इतनी हिम्मत आ गई अपने आप कि यार कोई और करने वाला नहीं है, करना तो मुझे ही पड़ेगा. कोई भी नहीं कर सकता है, करना मुझे ही पड़ेगा. पीपल कैन सपोर्ट, माई पेरेंट्स कैन सपोर्ट, एवरीबडी कैन सपोर्ट मी, बट खड़ा तो मुझे ही होना पड़ेगा मेरी डॉटर के लिए. देयर वर सम फ्यू फ्रेंड्स, लिटरली मैं अगर शायद वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी. मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरी कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और अंकिता, प्रिया, और कुछ ऐसे दोस्त हैं, श्वेता, मतलब रुचि, ऐसे कुछ रोनी, ये सब लोग हैं, ऐसे कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है. और देवर लाइक कि तुझे करना ही है. तो मैं ये बोलूंगी कि फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. अगर किसी के साथ भी ऐसे कुछ होता है तो प्लीज डोंट लीव देम अलोन कि यार अब उनकी सिचुएशन है, वही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो बहुत टाइम ऐसा होता था कि आई वाज क्राइंग अ लॉट कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ. बट मैंने जब सारी सिचुएशंस देखी तो मेरे जैसी तो बहुत सारी ऐसी यंग वुमेन्स हैं जिनके साथ ये हुआ. ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत करो, नाउ योर हस्बैंड इज नो मोर, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो. इवन दो हम अभी इतनी अच्छी सोसाइटी में हैं, मुझे भी ऐसा, मतलब लोगों ने बोला शुरू में, ऐसा हुआ मेरे साथ भी कि मेरे सामने नहीं बट मेरे पीठ पीछे ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार इतनी जल्दी मूव ऑन क्यों कर रही है. तो मतलब मैं समझ नहीं पाई कि यार सोसाइटी को क्या चाहिए. लाइक दे वांट अस टू क्राई एंटायर लाइफ, और दे वांट अस टू लाइक कि यार तुम एक जगह बैठ के बस रो. मतलब मुझे समझ नहीं आया उस टाइम पे. एनीवे, आई एम नॉट द पर्सन जो किसी की बात ऐसे सुनता है. मैं तो कभी भी कि जो गलत है उसको सुनने की जरूरत ही नहीं है. जो हो गया वो सिचुएशन चेंज तो हो नहीं सकती किसी भी हालत में. तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. यहाँ तो आप इंटायर लाइफ यू कैन क्राई कि यार ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, ये सोच के. और दूसरी चीज, या तो मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, और अपनी आगे की लाइफ को थोड़ा सा, जो चीजें हो चुकी हैं उनको हम क्या कहना चाहिए, भूल तो नहीं सकते कभी, बट हाँ उनको थोड़ा सा साइड करके कि यार अभी इसके साथ ही आगे बढ़ना है. जब ये सब हुआ उसके बाद मैं बहुत गूगल करती थी और कि यार ऐसे और कौन लोग हैं. तो बहुत सारे मैंने से, इवन लेडीज वर प्रेग्नेंट और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कोविड से. राइट, उनके ऊपर तो मतलब क्या ही सिचुएशन, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देख पाया. तो वो सारी सिचुएशंस भी हैं, बट उन्होंने मूव ऑन किया, जॉब किया, बिजनेस किया, या जो भी जैसे भी हुआ उन्होंने उस सिचुएशन को फेस किया और आगे बढ़े. तो लाइफ में आप स्टक हो जाओगे ना तो कुछ कर नहीं सकते हो. लोगों की बातें तो कभी खत्म नहीं होती, सुननी पड़ेंगी. बट मेरा पॉइंट वही है कि आप एक कान से सुनो, एक कान से जो आपको ठीक नहीं लग रहा है उसको निकालो, आगे बढ़ो. जो अच्छा लगता है, जो चीज आपको खुशी देती है, आपके परिवार को खुशी देती है, आपके बच्चे को खुशी देती है, वो करो. तो वही है कि हाँ, तो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपकी टांग खींचेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे. ना इट्स योर चॉइस आपको किसके साथ जाना है. तो आई चूजन कि मैंने उन लोगों को चुना जो मुझे मोटिवेट करते थे. मैंने हमेशा उन लोगों को देखा जो मुझे मोटिवेट करते थे. मैंने उन मदर्स को देखा जो सिंगल मदर्स होके भी बहुत कुछ कर पाई या बहुत आगे बढ़ी, या जिन्होंने अपनी लाइफ को एक अलग टर्न दिया,
तो यू आर नॉट द कल्प्रिट, अभी मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, मैं मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, राइट? अभी मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों बोलते हैं कि यार तुम ये नहीं पहन सकते, तुम ये नहीं पहन सकते, तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हमने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, राइट? हम मतलब मुझे बहुत खराब लगता है ये चीज को लेके, इवन आई फेस द सिचुएशन, मैं इस जनरेशन की, तभी मैंने भी ये सिचुएशन फेस करी है कि कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे बहुत पुरानी सोच के लोग हैं कि अरे अच्छा यू आर अ विडो, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए अब हम ये नहीं कर सकते, अरे अच्छा यू आर अ विडो, तुम नहीं 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 ये मत करो, तुम ऐसा मत जाओ, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वो मत करो, ऐसे लोग हैं। हालांकि मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज इन सब चीजों पर बिल्कुल बिलीव नहीं रखते हैं, ना रखते थे, तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हें जो करना अच्छा लगता है तुम वो करो, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जैसे आगे बढ़ना है तुम आगे बढ़ो। तो फैमिली का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलूंगी सबसे कि यार अगर कुछ और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सपोर्ट दो दोज पीपल तो ये सिचुएशन को फेस करना है। स्वाति, इफ यू डोंट माइंड, आप लोग की अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? एक्चुअली मतलब हुआ क्या कि हम लोग मिले तो किसी एक मतलब कम्युनिटी के थ्रू थे। ही वाज द फर्स्ट वन, मतलब मेरी लाइफ में जब व्हेन आई स्टार्टेड लाइक अब शादी करनी है और ये सब जब चीजें हुई, व्हेन आई मेट हिम आई फाउंड हिम वेरी मच ओपन माइंडेड, जैसा मैं से कभी सोच हाँ जैसा मैं कभी सोचती थी कि हाँ ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए जो बहुत ओपन माइंडेड हो, क्योंकि मैं वैसी बनती हूँ। चीजें बहुत जल्दी ऐसे नहीं हुआ कि क्विकली हमने देखा मिले, लाइक अरेंज मैरिज, मिले और शादी हो गई, वैसा नहीं हुआ। देयर वर फ्यू इश्यूज, तो फिर हम लोगों ने वो सब मैं और आकाश ने वो सारे इश्यूज शॉर्ट आउट किए। ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर हम लोग वीवर मतलब हम लोग सब में बात बात कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो आफ्टर 1 ईयर ऑलमोस्ट, देन आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स की लाइक वो जिसको हमने पहली बार देखा था मतलब मुझे उससे शादी करनी है, एंड ही आल्सो कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स की मुझे इस बंदी से शादी करनी है। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कि हम पहली बार मिले और फिर हमारी शादी हुई। तो थोड़ा सा लव कम अरेंज बोल सकते हो आप, ऐसा हुआ। अकेले कैसे रखोगे, मतलब what are your plans? See, right. This is a very good question, actually. People hesitate always to ask this question. Even though, when I came to know about your absolute, this page, about your page, तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। आई हैव सीन वन वीडियो, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग वन डे, तो मैंने एक वीडियो था शायद वो, देयर वाज वन बंगाली गर्ल, शी गॉट मैरिड सेकंड टाइम, ओके, शी वाज अ विडो एट 23, 22, 23 ऐसे कुछ हुआ, एंड कुछ एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। बट फिर से ये सब कुछ करना, शुरू करना बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली। आई फील यार फैमिली तो होनी चाहिए, डेफिनेटली फैमिली होना चाहिए, पार्टनर होना चाहिए, आपके बच्चे के लिए फादर होना जरूरी है। में ऐसा नहीं है कि मदर नहीं कर सकती है, बट अगर फादर और मदर दोनों करते हैं तो एक, मुझे ऐसा लगता है कि बेटर वे में आप कर सकते हो उस चीज को, राइट? तो स्टार्टिंग में जब whenever people ask me यार you should get marry again, तो I was literally against this, like I cannot do this यार, मैं इनजस्टिस कर दूंगी क्या आकाश के साथ, और मतलब नहीं हो पाएगा मुझसे ये सब, फिर से ये सब करना गलत भी है शायद, मतलब ये मतलब एक वुमेन का खुद का एक परसेप्शन है, उसको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, राइट? उसको पार्टनर चाहिए नहीं चाहिए, उसको ऐसा लगता है कि यस शी कैन हैंडल दिस सिचुएशन विदाउट अ पार्टनर, उसको ऐसा लगता है कि शी कैन प्ले अ रोल ऑफ मदर एंड फादर बोथ, डेफिनेटली वी आर प्लेइंग अ रोल मदर एंड फादर, बट उसको ऐसा लगता है कि यार मदर और फादर का दोनों का रोल मैं अच्छे से कर लूंगी, मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, तो दैट इज हर चॉइस।
ठीक है। बट अगर आप मुझसे पूछो तो यार मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी डेफिनेटली आगे जाके, अगर मैं आज से 10 साल बाद का सोचती हूँ, 5 साल बाद का सोचती हूँ, when once my daughter will be in a younger age, और वो थोड़ा सा टीन एज में आएगी है, तो will be her own life, like she will be busy in her own life, तब मैं क्या करूँ? तो लाइफ में डेफिनेटली सेकंड चांस लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, यार लोगों का तो कुछ कर नहीं सकते, राइट? तो उनको, बहुत सारे लोगों को ऐसा चाहिए कि नहीं हमारी फैमिली ऐसी है, ऐसी ही रहेगी, उनके साथ क्योंकि कुछ हुआ नहीं है। मूव ऑन करने का मतलब कभी ये भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कभी भूल सकते हो, यार ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं भूल सकते, आप कितना भी कोशिश कर लो, मरते सब तक आपको दिमाग में ये चीज रहेगी, राइट? अगर आपको लगता है कंफर्टेबल हो, बट डेफिनेटली यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट दिस, लाइक आई हैव माय डॉटर, राइट? अभी मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाती हूँ या किसी के साथ भी मैं बॉन्ड बनाती हूँ, तो डेफिनेटली आई हैव टू थिंक अबाउट माय डॉटर, नॉट अबाउट मी। अभी मेरा वो वाला 22-23 वाला एज नहीं है, टीनेजर भी नहीं हूँ मैं कि यार अभी वो मतलब ऐसे कोई प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अभी सर्कमस्टेंसेस आर टोटली डिफरेंट, बट लाइफ में कभी आप ये मत सोचो कि आपने अभी बस एंड हो गया। थैंक यू रियल, आई एम रियली अप्रिशिएट कि यू गिविंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अस, कि एटलीस्ट हम लोग वी कैन ओपन अप, राइट? हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग एटलीस्ट एब्सोल्यूट टॉक के एटलीस्ट ये तो है कि हमारे दिमाग में जो है, हमारे मन में जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी बाहर नहीं आ पाई, राइट? कभी हमें मतलब ऐसे एक फेस पब्लिक को फेस करने में भी एक दिमाग में वो रहता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे टाइप्स, राइट? बहुत सारे लोग तो इसी वजह से अपने आप को खींच लेते हैं वापस कि यार लोग क्या बोलेंगे। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एब्सोल्यूट टॉक एक ऐसा मुझे पेज लगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा जहां पर आपने बहुत अच्छा चांस दिया है सिंगल मदर्स को, और ऐसे लेडीज को कि जो ओपन अप कर सकती हैं और जो अपने सारे थॉट्स रख सकती हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो किस सिचुएशन से निकल कर आए हैं। तो वो सारी सिचुएशंस को आपने बहुत अच्छे से कवर अप किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। It's wonderful talking to you. It's been a great time. Take care, Swati.